एक कोई रहती है बहरहाल. So these are graphic stories, and as you know, graphic stories are all illustrated, fully illustrated. These are about very eminent Pakistanis, and I am extremely pleased that two of them, the sheroes, are sitting with me on this panel here. Zubaida Mustafa, I mean, we all know she's a much respected and very senior journalist. She joined Pakistan's leading English language daily Dawn. She joined it in 1975 as assistant editor, which was a very senior level for a woman in those times to join a newspaper. So that was a first. And in 2012, she was awarded a Lifetime Achievement Award by the International Women's Media Foundation for her news coverage on women's issues, on children's issues, on education, health, culture, now she has retired from Dawn after 33 years of service there, but she continues to write despite her handicap, as you can see, but she continues to write columns for Dawn. अगर आप every alternate Friday को देखें Dawn को तो उनका column होता है. Like yesterday was Friday, right? Yes, and yesterday she wrote about homework, the homework that children get. So we are ardent admirers and readers of her columns. Next to me is Shima Kermani. She is phenomenal. She's, again, an icon. She's Pakistan's leading performing artist. She's a human rights activist, she's a choreographer, she's a dance guru. She also taught our daughter when she was 5. She's about 42 now, but so we've had the daughter. a long relationship with Shima. And Shima started her Tehreek-e-Niswa women's movement in 1979. And you will find her at the forefront of all kinds of, whether it's protests or one thing or the other. As you know, in our country, it's endless. So, and she is a recipient of Pride of Performance in Pakistan, and also numerous other awards nationally as well as internationally. Joining us here is Sibtain Naqvi, the youngest of the panelists. Sibtain is a corporate strategist, independent researcher, and he is also an author. He focuses on institutional history, development, economics, politics, and cultural anthropology. He has been heavily cited in various prestigious foreign publications, and he has authored Unraveling Gordian Knots, the works and worlds of Dr. Ishrat Hussain. Dr. Ishrat Hussain used to work with the State Bank, and then he was heading the IBA. Sibtain has written a history of IBA, and he has written several works about Sadiqain. Sibtain is the grandnephew of the great Sadiqain, the artist.
पाकिस्तान में लोग दूसरे किसी आर्टिस्ट का नाम जाने ना जाने, लेकिन सादिक़ैन का नाम सब जानते हैं. तो I am really honored and privileged to have this panel with me today. So I want to पीछे अगर सुनिए, excuse me. ये कुछ तस्वीरें मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पीछे वो चलती रहेंगी. जी आगे चलाइए जी. तो ये जो किताबें हैं ना, एक आपको टेस्ट देने के लिए कि अंदर से और बाहर से ये किस तरह की दिखती हैं. ये सारे जो ग्राफिक नॉवेल्स जिसको हम कहते हैं, ग्राफिक स्टोरीज़ या तस्वीरी कहानियाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ लोग हैं. और ज़ाहिर है कि मैंने तो लिखा है इसे, लेकिन इलस्ट्रेट हालांकि मैं भी करती हूँ, बहुत सारी की हैं मैंने, बच्चों की किताबें इलस्ट्रेट भी की हैं, लेकिन मैं क्योंकि ये इतना मुश्किल काम था, मैंने कोई 90 से ज़्यादा बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं और इलस्ट्रेट भी की हैं. लेकिन आप सुनिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम मेरे लिए ये सीरीज़ थी. क्योंकि जब आप फ़िक्शन लिखते हैं ना, तो वो तो कुछ भी लिख दूँ, है ना, मैं इंसानों को भी पर लगा के उड़ा दूँ, कुछ भी कर लूँ. लेकिन जब आप किसी शख्सियत के बारे में लिखते हैं, you cannot, that's a young Zubaida Mustafa, as you can see, with her 2 daughters. Yes. और ये मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहती हूँ क्योंकि उनके घर जाकर मैंने देखा कि आप किस तरह अब तक लिखती हैं, है ना. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उससे बहुत इनको फ़ायदा पहुंचा है. और ये जैसा कि मैंने कहा कि अपनी आँखों का जो इनका मसला है, उसके बावजूद ये आज तक ये लिख रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. एंड दैट्स शीमा, विल टॉक अबाउट हर लेटर ऑन. तो ऐसी दिखती थी पहले वो बचपन में. तो so you know it has really been जी मैं बता ये रही थी कि देखिए, ये ग्राफिक नॉवेल्स लिखना इतना मुश्किल काम था क्योंकि हर एक के बारे में जब आप किसी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो उसका ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है. मैं शीमा को इतने सालों से, ऑलमोस्ट पता नहीं 35-36 साल से जानती हूँ, लेकिन शीमा के साथ बैठ के मिल के कई बातें पूछनी पड़ी. मैं ज़ुबैदा मुस्तफ़ा को भी तकरीबन इतने ही सालों से जानती हूँ, लेकिन मुझे उनसे भी बैक एंड फोर्थ बहुत सारी बातें पूछनी पड़ी. उनके घर गई मैं वही देखने, ख़ास तौर पर कि आप कैसे काम करती हैं. इसमें इस सीरीज़ में जहांगीर ख़ान मौजूद हैं. आज वो ज़रूर आते अगर वो शहर में होते. तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने या पूरी दुनिया ने उन जैसा स्पोर्ट्समैन पैदा नहीं किया है. कौन 555 मैचेस लगातार जीतता है, किसी स्पोर्ट में उनका कोई सानी नहीं है. और आप अगर इंटरनेट पे देखें या किताबें देखें, उनके बारे में सब कुछ मौजूद है. मगर मैं जो कुछ चीज़ें पूछना चाहती थी वो मुझे नहीं मिल रहा था. तो फिर उनसे जाकर मिली और कोई पता नहीं 2-3 घंटे तक हम बातें हुई उनके बचपन के बारे में और बहुत कुछ और. क्योंकि मुझे लगा कि जब तक ये सब चीज़ें और जो लोग अब हम में नहीं रहे, तो उनके जो उनके ख़ानदान के लोग या उनके बहुत करीबी दोस्त या जिन लोगों के बारे में उनसे मालूमात हासिल हो सकती थी, तो उन सब से मैंने राब्ता किया और सबसे जाकर मैं मिली और अपने नोट्स बनाए. क्योंकि इन किताबों में क्या कहते हैं, डायलॉग्स हैं और नैरेटिव्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, है ना.
तो ये मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको इलस्ट्रेट किया है और मेरा ख़्याल है कि ग्राफिक स्टोरीज़ में इक्वल क्या वो देना चाहिए टू द इलस्ट्रेटर्स एज वेल, बिकॉज आफ्टर ऑल यू नो एज अ राइटर तो मैंने काम किया, बट द इलस्ट्रेटर्स for them and the black and white pictures, some of them that you saw, I had to provide those to the illustrators. So the people I could ask, I asked for them to, you know, give me those pictures, and otherwise, you know, if they could be had from other sources, so that's what happened. And so let's begin. I would also later on, after I speak with the people who are here, I would also like to just very quickly, you know, go through some of these books, the people who are not with us. So, Zubaida Mustafa. Now, Shima, you said you would like to read something from this. So here you are. Shima ने मुझसे कहा कि मैं English वाली उसमें. So there are two versions of the books. Oxford University Press wanted me to write these in Urdu. They were written in Urdu by me, and then they were translated in English. So both the versions are available. जिसको अंग्रेज़ी में पढ़ना है, जिसको उर्दू में पढ़ना है, इन किताबों को वो मौजूद हैं, सिवाय सादिक़ैन की किताब, वो अब तक इन्होंने अंग्रेज़ी में नहीं की है और वो सिर्फ उर्दू में मौजूद है, लेकिन बाकी सारी जो हैं वो इंग्लिश उर्दू दोनों में हैं. जी शीमा. Here. Is there any particular part you want me to? Unfortunately, Romana, I visited the OUP stall this morning, and these books are not available there, which is really sad. मैंने उनको कहा कम से कम मंगवा लें, अभी तो एक दिन और है आपके पास, तो ये किताबें नहीं थी उधर OUP के स्टॉल में. हाँ, और so yes, I think we need to make note of that कि you know जिस चीज़ पे सेशन हो रहा है वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए. So मैं एक छोटा सा पीस ज़ुबैदा आपा की कहानी का सुना रही हूँ. The friend who most influenced Zubaida was Khalda Qureshi. Khalda was the granddaughter of Moa that she write on social and economic issues arising from education, women and children's concerns, and health. In those days, it was not common for journalists to focus on these themes. Zubaida liked his suggestion. Copy? Yeah. थैंक यू शीमा. आई वांट टू मैं पढ़ना चाहूँगी एक और इसी किताब में से और उर्दू में. तो अच्छा, बचपन ही से ज़ुबैदा और उनके ख़ानदान के हर फ़र्द को किताबों से इश्क था. चुनांचे घर में हर वक्त किताबों की भरमार रहती. ज़ुबैदा को खेलों का भी बहुत शौक़ था. उनके छोटे भाई मेहदी हसन उम्र में उनसे करीब तरीन थे, लिहाजा दोनों मिलकर खूब उधम मचाते. ज़ुबैदा को अपने स्कूल के ज़माने में क्रिकेट खेलना और साइकिल चलाना पसंद था. फिर कॉलेज में उन्होंने नेटबॉल और एथलेटिक्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. बचपन में क्रिकेट खेलते हुए एक रोज़ अपनी जीत की खुशी में जब मेहदी हसन और उनके दोस्त लड़कों ने कलाबाजियाँ खानी शुरू की तो ज़ुबैदा को भी ऐसा करने की दावत दी गई. ज़ुबैदा को कलाबाजी तो ना आती थी, मगर वो हार मानने वालों में से भी न थी. उन्होंने कहा कि उन्हें सर के बल खड़ा होना आता है और वो दीवार के पीछे जाकर ऐसा करेंगी, बशर्ते कि कोई वहाँ पर ना आए. फिर उधर जाकर उन्होंने अपने जूते उतारे और उन्हें अपने हाथों पर पहनकर दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता दीवार के इतना ऊपर किया कि सब लड़के उनकी इस काबिलियत से मरूब हो गए. I just thought that was so funny and so lovely, and I'd like to speak with you, Zubaida.
जी, और उनसे भी फिर बात करते हैं. The world knows Zubaida Mustafa as a principled and fearless journalist. Besides her outstanding work, the fact that she did not let her declining vision become an obstacle to her work is a lesson that everyone can learn from. Instead of capitulating to her declining eyesight, she makes use of modern technology, which allows her to magnify words until she can read them. Outside her home, not only family members and friends, but also strangers frequently reach out to her for help. जी ज़ुबैदा आपा. जी, आप कुछ बताना चाहेंगी जो किताब में मैंने नहीं लिखा है? एक तो रुमाना आपका बहुत शुक्रिया माइक कि उनके करीब. आपने कई लोगों ने अक्सर मुझसे कहा कि हम आपकी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल कभी खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग अपने हिसाब से जो मर्जी है लिख लिया और ज़्यादा से ज़्यादा बस सिर्फ तारीफ़ों का पुल बांध लेते हैं और अक्सर हकीकत को नज़रअंदाज आवाज़ आ रही है? नहीं, ज़रा ज़रा आवाज़ आप ऊंची कर दीजिए. हाँ, आप बढ़ा दीजिए ना अच्छा, उधर से. तो लेकिन जब रुमाना आपने कहा ना तो उस वक्त अब आ रही? मैं यानी मुझे ये हुआ कि हाँ रुमाना लिख सकती हैं और मैं उसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अमीना सैयद की जो इस फेस्टिवल की बानी भी हैं और जब उनका आइडिया था ये कि ग्राफिक नॉवेल्स हों और जो मुझे याद है कि शायद रुमाना आप ही ने बताया था कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि भाई इन लोगों पे हो और उसमें मेरा नाम शामिल किया. तो मैं अमीना सैयद की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझको इस काबिल समझा कि कुछ लिखा जाए, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था. मैंने ये सोचा था कि मैं ख़ुद लिखूँगी, लेकिन वो भी इतने लोगों के कहने के बाद फिर हिम्मत की और लिखी डाली वो माय डॉन ईयर्स करके. खैर वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की किताब है और आपकी मैं यही कहूँगी कि आपने जो मेरी उम्मीद थी कि रुमाना जिस तरह करेंगी बिल्कुल उससे ज़्यादा ही अच्छा किया. I'm so honored. और ये भी नहीं कि चलो ज़रा सा बढ़ा चढ़ा के चटपटा कर लो ताकि पढ़ने में मज़ा आए, क्योंकि वो भी सही नहीं होता. क्योंकि मैं आखिर सहाफ़ी हूँ और पहले दिन से यही कहा गया कि हकीकत से कभी अलग मत होना. तो इसलिए तो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी जो हकीकत हो वो यानी वो भी सही रहनी चाहिए ना. ये तो नहीं है कि अपने बारे में जो मर्ज़ी है कह दिया. तो बहुत शुक्रिया आपका. और अभी भी आपने इस वक्त सोचा कि मुझको बुलाऊं तो मैंने कहा, और वाकई मैं तो भूल भी गई थी कि उसमें क्या चीज़ें हैं. अब मेरे भाई आएंगे ना, वो थोड़े दिनों में आने वाले हैं, तो उनके साथ वो ही होता है झगड़ा. आप कहते हैं नहीं तुम तो समझी नहीं थी कि हम लोग को तो पता था कि तुम अपने जूते हाथ में लेके कर लेकिन मुझे यकीन है मैं सब चीज़ समझ जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त बस मैंने ये सीखा कि आप चाहें तो आप जो भी हासिल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं. और मेरी जो फेमिनिज़म भी रही है वो यही है कि ज़्यादातर, यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि बस साथ हो जाएं. अभी 2-3 हफ्ते पहले शीमा ने बुलाया था, हम लोग ने उस पर बात हुई थी, लेकिन उस तरह से कभी झगड़े नहीं किए जो अक्सर हम देखते हैं आजकल, जैसे फेसबुक पे गाली गलौज और ये सब है, वो कभी नहीं किया. और मैं तो कहती हूँ अपने ज़माने के लिहाज से जो कुछ हासिल किया मैं तो खुश हूँ. हालांकि अब लोग भूल गए कि पहले क्या होता था, लेकिन मुझे तो मालूम है ना कि जब शुरू किया था तो उस वक्त ख़वातीन का क्या यानी स्टेटस था, लोग क्या समझते थे, ख़वातीन पे कितनी पाबंदियाँ थीं. तो वो सब तो अब तो नहीं हैं. और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इतनी ख़वातीन को देखती हूँ मुख्तलिफ़ शोबों में, क्योंकि उस ज़माने में ये भी था कि मैं अकेली होती थी. अब मैं डॉन में जब काम करती थी तो और कोई वहाँ खातून नहीं थी. एक थी जो हफ्ते में एक दिन आके विमेंस पेज कर लेती थी. लेकिन फिर मैंने सबसे पहले ये सोचा कि ये तो
अकेले अकेले मज़ा नहीं आता, तो धीरे धीरे करके जैसे और ख़वातीन आती रहीं और वो जगह होती थी, और लेकिन मैंने कभी किसी को यूँ नहीं कहा जो कि अच्छी ना हो, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि जब तक औरतें ठीक से काम नहीं करेंगी उनको हक़ नहीं है कि वो कोई चीज़ मांगे। लिहाजा ये भी एक यानी कामयाब रही, क्योंकि आप देखिए कि कितनी ख़वातीन हैं और वो कितनी अच्छी सहाफ़ी हैं, मैं यही कहूँगी। तो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वो जो लिस्ट थी ना, तो अमीना और मैंने मिलकर बनाई थी और उसमें कोई 80 लोग हमने लिखे थे, और मैंने अमीना से यही कहा कि अमीना 80 से तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में किताबें होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है मैं तो अपनी ज़िंदगी में नहीं लिख पाऊँगी इतने सारे लोग। लेकिन बाद में फिर कुछ और लोगों ने भी इसी सीरीज़ के लिए काम किया है, तो मेरा ख़याल है कि सब मिलके शायद 15-20 हैं इस सीरीज़ में किताबें। जैसे डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में है, परवीन रहमान के बारे में है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा फ़िलहाल, अब्दुल सत्तार ईधी के बारे में है, नहीं वो तो मैंने लिखी है, फ़ातिमा जिन्ना और राना लियाकत। तो लेकिन बहरहाल हैं किताबें और, लेकिन मेरा ख़याल है कि कई और किताबें लिखनी चाहिए इस सीरीज़ में, बहुत अहम बात है ये। शीमा, मैं अब आपकी तरफ आती हूँ, और आपको सब जानते हैं, आपके काम को भी सब जानते हैं, लेकिन मैं मैंने देखे ये इतने सारे जो मार्कर्स लगाए हुए हैं, तो ये एक मज़े की बात मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये शीमा की किताब से है कि मैडम एल्जिग्नर एक रूसी खातून थी जो रॉबसन रोड पर वाक़े मॉडल सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पियानो बजाने पर मामूर थी। दोपहर और शाम को वो अपने बाथ आइलैंड कराची के फ्लैट में पियानो के ट्यूशन देती, और शीमा भी उनके घर पर पियानो सीखने जाती थी। अब ये जो थी ना, ये रशन खातून, और जिस स्कूल का ज़िक्र है मैं उस स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, यानी नर्सरी से लेके और मैट्रिक तक मैंने वहाँ पढ़ा। और जब हम लोग किंडरगार्टन में होते थे तो ये आती थी और बहुत ज़्यादा भारी भरकम थी, शीमा आपको याद होगा, और वो पियानो बजाती थी और हम बच्चे गाते थे, हमारी उम्रें थी कोई वही 4 साल 5 साल 6 साल, लेकिन बहुत खौफ था उनका। मुझे नहीं मालूम शीमा, मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि हम तो इतना डरते थे सारे उनसे, क्योंकि बहुत उनका मिजाज है ना, तो आप तो मगर उनसे सीखती थी, वो तो बजाती थी और हम गाते थे, तो आप बताइए ज़रा कैसा था वो। हाँ, मैडम एल्जिंगर जो थी, शी वॉज अ वाइट रशन, और बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, मतलब आप 1 मिनट लेट पहुँचे उनकी क्लास में तो आपकी क्लास नहीं होगी। और मतलब बाकायदा उनके पास एक रूलर होता था, तो अगर आपकी उंगलियां गलत की पे गई हैं तो शी वुड टैप यू ऑन दैट। मगर उस डिसिप्लिन और उस स्ट्रिक्टनेस ने जो हम लोगों के कान के अंदर वो स्केल्स और सुर जिसे हम कहते हैं, मगर वो अंग्रेज़ी में स्केल्स कहलाते हैं, वो ऐसे बिठाए कि ये था कि आप को ये करना था कि कोई मेलोडी है उसको सुन करके रिप्रोड्यूस करें आप, तो वो चीज़ इतनी उन्होंने बिठा दी थी हमारे अंदर के। बट यस, शी वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और कभी कभी तो हम लोग बाकायदा मैं अपनी अम्मी से इल्तिजा करती थी और रोती थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। बट शी इज़ द वन हु एक्चुअली पुश्ड अस के हमको उन्होंने रिसाइटल्स तक दिए। ये बहुत सारे टीचर्स जो है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को उस तक लाते नहीं हैं कि वो खुद उनके रिसाइटल्स करवाएं, एंड वी परफॉर्म्ड एट गोथे इंस्टीट्यूट इन सोलो रिसाइटल्स एंड थिंग्स।
with her mentorship. But you did that. I mean, in dance, Yes. you had your students. हमारी बेटी जब 6 साल की थी तब पहला उसका परफॉर्मेंस हुआ था अलियांस फ्रांसिस में, मुझे याद है. बिल्कुल. तो और मतलब हर साल ही होता था. आप कहीं ना कहीं उन लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को ले जाती थी और परफॉर्मेंसेस होते थे. एब्सोल्युटली. तो ऐसा है कि मैंने डांस सीखना शुरू किया था. एक कपल था कराची में, मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम, उनसे. तो उनके घर में और उनके जो उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया था, जो माहौल था, वो बहुत ही एक फैमिली नुमा. उनकी अपनी फैमिली भी हर चीज़ में इन्वॉल्व थी. कोई गाता था, कोई बजाता था, कोई सितार, कोई ड्रम्स. तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी आर्ट में, परफॉर्मेंस में. रोमाना अपनी बेटी आसमा को लेके आई व्हेन शी वाज 5 एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड आई सेड मैं तो 5 साल की बच्ची को नहीं एक्चुअली सिखा मैंने सकती. सीमा को फ़ोन किया था जब वो 3 साल की थी, 3 अस्मा. साल, अच्छा. और Oh मैं my God. बहुत चाह रही थी कि बस उसको मैं डांस, क्लासिकल डांस सीमा से सिखवाना. सीमा ने कहा 3 साल? नहीं, अभी कम से कम 2 साल रुक जाइए, फिर लेकर आइएगा. तो द डे शी टर्न्ड 5 आई सेड there you are. Yeah. You know. तो उस ज़माने में, and this is as you said, how long ago, Romana? This was, which year would it be? In She the was early born eight- in 82. हाँ, so ये होगा 87. 87 के. तो अब आप सोचिए उस वक्त मेरे पास जब रुमाना की बेटी आई है तो उसके साथ साथ और भी थी. 6-8 और बच्चियां उस उम्र की थीं, जो कि उस उम्र से सीखना उन्होंने शुरू किया. मतलब फ्रॉम द टाइम दैट दे वर 6 years old टिल द टाइम दे एक्चुअली वेंट अब्रॉड फॉर देयर फाइनल फॉर देयर हायर एजुकेशन. जो नहीं गया वो लगा रहा, जो चले गए वो चले गए. मगर अब आप देखिए कि वो चीज़ नहीं होती है. आई मीन आई एम जस्ट शेयरिंग दिस कि अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड कि अब ज़्यादा बच्चियाँ आएँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, वी आर बिकमिंग मोर होप. आई मीन देयर इज़ मोर एक्सपोजर टू द आर्ट्स, परहैप्स, आई डोंट नो इफ देयर इज़. मगर ये कि नहीं है वो उस किस्म का डिसिप्लिन या उस किस्म का माहौल जो कि हमने घनश्याम्स में देखा था कि बच्चियाँ घर पे आती थी, हम लोग उनके घर जाते थे. इट वाज लाइक अ फैमिली एंड सो वी वुड परफॉर्म विद देम विदाउट एवर आस्किंग अपने माँ बाप से कि हम उनका परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या हमें इजाज़त है या नहीं है. एंड अब मैं देखती हूँ कि कोई बच्चियाँ आती हैं तो उन सबसे पहले मसला होता है कि अम्मी अब्बा परफॉर्म की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, आमतौर से नहीं देंगे. और छोटे बच्चे नहीं आ रहे बिकॉज इट वाज एक्चुअली द पेरेंट्स who had this desire कि हमारे बच्चे आर्ट से एक्सपोज हों और सीखें ये सारी चीज़ें. और अब पेरेंट्स नहीं लाते हैं, सो बच्चे खुद से तो नहीं आ जाएंगे. एंड इट इज़ नाउ ओनली एट अ लेटर स्टेज लड़कियां जो आती हैं ना, जिनको शौक़ है, और वो बल्कि टाइम्स व्हेन दे से टू मी कि हम सारी ज़िंदगी सीखना चाहते थे मगर अम्मा ने नहीं सीखने दिया, फिर शोहर ने नहीं सीखने दिया और अब हमको मौका है. तो यू नो दैट इज़ थिंग्स हैव चेंज्ड more negatively rather than positively. That's what I wanted to share. I think a lot has to do with the time that we suffered. Yeah. तो उससे पहले क्योंकि डांस होता था, सीखते थे लोग, परफॉर्मेंसेस होते थे. Pakistan was a different kind of a country. Karachi was a different kind of a city. और वो जो 11 साल हम सबकी ज़िंदगी में रहे, तो उसके बाद वो जो लेगेसी है ना, वो manifesting itself now, ना? जी, तो वो इतने सालों में कोई फ़र्क नहीं आया. लेकिन ये आप सही कह रही हैं कि पेरेंट्स के ऊपर होता है. तो मैं भी बहुत सीखना चाह रही थी, डांस भी, गाना भी, म्यूज़िक भी, आर्ट भी, हर चीज़. लेकिन मेरे अब्बा हमेशा ही स्टूड बिहाइंड मी वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू. बट माई मदर वॉज एब्सोल्युटली अपॉल्ड कि लोग क्या कहेंगे, है ना. तो वो तो मेरा ख्याल है इसीलिए मैं चाह रही थी कि अस्मा सीखे. जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपका दिल चाहता है कि आपके बच्चे करें. एंड दैट इज़ वाई आई वॉज एडमेंट एब्सोल्युटली कि ये होना चाहिए. तो शीमा, ये आप उसी सफ़े पर एक ये है कि आप जा रही हैं गाड़ी में, आप छोटी सी हैं और अपने वालिदैन के साथ, और कोई
कोई अगर फ़कीरनी और अपने बच्चों को लेकर वो मांगने आ रही है, तो आप सवाल आपका ये है कि इसके पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, ये फटे हुए कपड़े उसने क्यों पहने हैं. आई थिंक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट came to your mind. एक सोच मैं इन किताबों के ज़रिए दिखाना ये चाह रही थी, और सबका मैंने कोशिश ये की कि बचपन से शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी शख्सियत जिस तरह बनती है बाद में, वो एक बचपन से उठाव कैसे हुआ है, उठान कैसे हुई है, उसका बहुत अमल दखल होता है. So you had these questions in my head. these questions in your mind. रुमाना, ऐसा है कि देखिए हम लोगों के ज़माने में, when I was growing up, there was no ये मोबाइल, and there was no also no TV, तो हम लोग इन चीज़ों में नहीं होते थे. और फिर क्या था कि बिकॉज देयर वाज नन ऑफ दिस, देयर वर बुक्स. आई मीन हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी? फ्रॉम इंसाइक्लोपीडियाज, फ्रॉम बुक्स ऑफ नॉलेज. और ये चीज़ें हमारे मतलब जो पढ़े लिखे पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते थे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एंड लिटरेचर, देयर वाज अ लॉट ऑफ बुक्स अराउंड अस, लॉट ऑफ लिटरेचर टू रीड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट नर्चर्स चिल्ड्रन. एंड अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ अब चली गई, जो आप कह रही ना कि वो उस किस्म के सवाल क्यों नहीं उठते हैं अब बच्चों के जहनों में, कि हम सड़क पे खड़े हैं तो एक भीख मांग रहा है तो एक एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा है. तो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू वर्ल्ड क्लासिक्स, यू आर रीडिंग अबाउट द वर्ल्ड लिटरेचर, यू आर लुकिंग एट इंसाइक्लोपीडियाज, यू आर लुकिंग एट एटलस, यू आर रीडिंग बुक्स ऑफ नॉलेज. तो बहुत सोचने का वक्त होता है. अब मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को सोचने का वक्त नहीं है. दे आर कॉन्स्टेंटली, आई मीन, एंड वेरी शॉर्ट फोकस्ड. तो अब मैं क्लास में भी, आई मीन, अभी आपने जिक्र किया ना कि 5-6 साल से हमने शुरू की थी, और कई सेक्शंस आ गए थे. पहले वाला, फिर उसके बाद अनदर ग्रुप ऑफ किड्स हुआ 6 year old, एंड अनदर 4-5 दफ़ा मैंने इस उम्र के बच्चों के साथ शुरू किया, और 10-15-20 साल तक लगे रहे वो बच्चे. मगर आज मैं आपको बताऊं कि जो अफसोस की बात है कि आज के बच्चे, आई कांट टीच दम. वो कोई फोकस ही नहीं है. 5 मिनट के बाद कहने लगते हैं मैम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं. तो ये बोर होने का तसव्वुर हम लोगों के ज़माने में तो नहीं था, मगर अब तो हर चीज़ बोर हो रही है. सो आई डोंट रियली नो हाउ टू कीप देम एंगेज्ड एनी मोर, यू नो, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस constant Zubaida appa, you know, this constant online पे लगे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें, images moving fast, and you know, I think that. So Shima, you learnt Bharatnatyam and Odissi, जो हमारी बेटी ने भी आपसे वही सीखा था. तो ये जो भाव जिसको आप डांस की ज़ुबान में कहते हैं, यानी चेहरे के तासुरात या राग और ताल और रक्स, उन सब का एक मिलाप है, राइट? तो मुझे मालूम है कि आप इस वक्त बहुत ही शीमा इज़ इन पेन. आई मस्ट टेल यू, शी हैज़ बर्न्ड हर सेल्फ. ये जो उनके गले में ये लगा हुआ है, तो ये गर्म पानी अपने ऊपर इन्होंने डाल लिया था. और दूसरा, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यूँ भी कि ख़ास तौर पर मेरी वजह से ये इन्होंने इनको जाना था कल अपनी पूरे ट्रूपे के साथ लाहौर, हबीब जालिब का वहाँ पर मेला है और ये जाएंगी. लेकिन ये कहती है मैं बस में जाती हूँ अपने लोगों के, अपने टीम के साथ, लेकिन अब मैं हवाई जहाज़ से जाऊँगी क्योंकि आज जाएंगी. जी, क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये हिस्सा लेके और उसके बाद मैं फ्लाई करूँगी. तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दैट. मगर क्या आप इन लोगों नहीं, मगर इन जो लोग नहीं वाकिफ़ हैं क्लासिकल रक़्स से ख़ास तौर पर, क्योंकि कुछ जो धमा चौकड़ियाँ होती हैं, जो बॉलीवुड वाला डांस या पाकिस्तान में भी जो फिल्मों में होता था, तो उससे तो बहुत से लोग उसको तो जानते हैं. लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे ऑडियंस
ऑडियंस में लोग हों या बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम, तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगी प्लीज़ प्लीज़? थैंक यू रोमाना, और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस पैनल में रखा, एंड ऑल्सो सच एन ऑनर कि इन्होंने मेरा नाम चूज़ करके एक किताब रखी. आई मीन इट इज़ रियली एन ऑनर फॉर मी टू बी इन द लिस्ट ऑफ पीपल लाइक बेगम राना एंड फातिमा जिन्ना एंड नूरजहां वगैरह. तो थैंक यू. कहा तो गया था कि ये यूथ पवेलियन है, मगर बड़े लोड़े कम लग रहे हैं बहरहाल. तो जी, डांस में ये है कि इट इज़ अ फुल लैंग्वेज ऑफ योर एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर्स ना. तो खैर बॉडी का तो मूवमेंट है ही है, मगर एक्सप्रेशन एंड तो इसमें हम इट्स एंड ऑल्सो सबसे अहम बात कि इट्स ऑल्सो इट्स खड़े होकर करूँ तो आवाज़ आ जाएगी. नहीं, पीछे के लोगों को शायद दिखाई ना दे. हाँ, but will they be able to hear me if I think Yes, I will be able yes. to. सुनाई देगा आपको ऐसे? सबको जी, सुनाई So, okay, thank you. तो ये है, नहीं माइक में पकड़ नहीं सकूंगी because हाथ I want my hands free. तो ये कि of course dance is about story. डांस इज अबाउट स्टोरी टेलिंग. किससे कहानियाँ, दास्तानें, अपने फोक टेल्स, अपना हेरिटेज, अपनी तारीख बयान करने के बारे में ना. कथा वो लोग कहते थे जो कि कथाकार थे और जो कि तारीख और कहानियाँ बयान करते थे. उसमें फोक टेल्स नहीं है उसमें. तो वो क्या करते थे, जो भी हमारे पास है, हमारा जिस्म, हमारे हाथ, हमारा एक्सप्रेशन, हमारी आंखें, हमारी आवाज़, हर चीज़ को इस्तेमाल करते थे टू मेक इट मोर ड्रामेटिक एंड इफेक्टिव. तो हम कहानी बयान कर सकते हैं कि उधर दूर एक दिन मैंने एक दरिया देखा. उस दरिया के किनारे ये दरख्त था जिसमें नई टहनियाँ निकल रही थी और छोटे छोटे फूल दिख रहे थे. हाँ? या आप कह सकते हैं, इधर आओ, देखो कितनी खूबसूरत औरत है. चांद अपनी रोशनी से पूरा रास्ता चांदनी की रोशनी दिख रही है. नींद आ रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है. So you see, I mean, I don't need to actually be saying these words. Without these words, you can make out what I'm doing. Thank you. Love. Exactly. So that's what I. थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू. अब हम आते हैं इस किताब पर. सादिक़ैन, सब जानते हैं सैयद सादिक़ैन अहमद नकवी उनका पूरा नाम था. और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे साथ सिब्तैन नकवी मौजूद हैं, उनके ग्रैंड नेव्यू हैं. सादिक़ैन का ख़ानदान जिस महल्ले में रहता था तो उसको बगला कहा जाता था. और वो इसलिए कि उसके करीब एक तालाब था बड़ा सा, जिसमें बहुत सारे ढेरों बगले आते थे. बंगला नहीं, बगला. जी जी. तो क्योंकि इन बच्चों को नहीं मालूम इसलिए मैं पूछ रही थी. बहरहाल तो और बिल्कुल इसी तरह जैसे कहा जाता है कि अमरोहा जहाँ वो पैदा हुए थे, तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या गलत है, लेकिन अमरोहा का नाम वहाँ के आम और उस कस्बे के पास सूत दरिया में पाए जाने वाली रहू मछली के नाम पर रखा गया, उसको जोड़कर अमरोहा. तो बहरहाल तो ये तो है. मगर ये जो शौक़ होता है ना शुरू से, जैसे सादिक़ैन भी एक कुम्हारन थी और उसके पास चले जाते थे. वो मिट्टी के बर्तन बनाने के अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग अपने मिट्टी के घरों पर भी डिज़ाइन बनाते हैं या कोई ड्राइंग्स बनाते हैं. तो उनको बहुत अच्छा लगता था, वो भी वहाँ पर बैठ के वो देखा करते थे और ख़ुद बनाने की कोशिश करते थे. और घर पर भी अपनी दीवारों पर
और मैं ख़ास तौर पे इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि इनके इस इलस्ट्रेशन में तो सिर्फ अम्मा ने कान मड़ोड़े हैं, मुझे तो बाकायदा मेरी तो पिटाई होती थी मेरी अम्मा से, क्योंकि मैं कुछ भी मिल जाए, कोयला, चौक, पेंसिल, तो मैं भी अपनी घर की दीवारों पे क्योंकि ड्राइंग करती थी और बहुत पिटी हूँ उसकी वजह से। तो लेकिन ये जो किसी चीज़ का जो एक जुनून होता है, पैशन होता है, या आम तौर पे जिसको हम कीड़ा कहते हैं तो ये निकलता नहीं है ना, वो मौजूद रहता है। और सादक़ैन इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने यानी उनकी जो ख़ास जो जिस वजह से वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, एक तो उनके म्यूरल्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े म्यूरल्स हम लोग सिर्फ ग़ालिबन हमने सिर्फ देखा है जो फ्रेयर हॉल में है ना। फ्रेयर हॉल का म्यूरल बच्चों आपने देखा है? जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए, नहीं बेटे, अपने 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 वालिदैन से कहना कि आपको लेकर जाएं। आपने भी नहीं देखा? जी जी, स्टेट बैंक में भी है, स्टेट बैंक के म्यूज़ियम में। वो डॉक्टर अस्मा इब्राहिम ने बहुत बेहतरीन एक स्टेट बैंक म्यूज़ियम बनाया है, जिसके अंदर ये द ट्रेजर्स ऑफ टाइम, ये मेरी किताब में मौजूद है। ये तो तस्वीर, फ़ोटोग्राफ नहीं है, इलस्ट्रेशन है, लेकिन इसमें सब बहुत सारे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, पोर्ट्रेट्स हैं। तो सिप्तैन, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखिए, उनका जिस वक्त इंतकाल हुआ, विच वाज 1987, राइट? तो आप तो पैदा नहीं हुए होंगे या हो गए थे? नहीं, मैं शायद अच्छी जीन्स के ऐसे लगता शायद यंग हूँ, लेकिन आई वॉज वेरी मच देयर। You were very much there. So what do you remember about him? देखिए, first and foremost, I only really realized that he's a major artist when I was in my teens. क्योंकि जब आपके सामने आपके कोई बड़े होते हैं तो you're seeing them as a family elder. And he, contrary to what some people might think, he was a very dedicated family man. My earliest memory of spending time with Dada is in winter. It was very cold and I had just come from taking a bath. In fact, my mother had given me a bath. I was small. सादक़ैन, सॉरी, सिप्तैन के वालिद और वालदा दोनों यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। So I came in and I was a little cold, and he had this incredible ability to connect with people of all ages and all sorts, and there are many stories that he's connecting with a maid in Jinnah Hospital, but at the same time he's rejecting Farah Diba's request to paint a portrait and all that. Right? So he was across like a true dervish, right? And वो कहते थे मैं कचरे के डिब्बे का आर्टिस्ट हूँ, मैं ड्राइंग रूम का आर्टिस्ट नहीं हूँ। So Rumana Saab, he was far more complicated than just that. Yes, right? yes, he was. And kudos to you for trying to capture him, but trying to capture Saadaqain is like trying to capture the air. Not easy. Right? He's was, far. He's like the cosmos in many ways, just like any other genius, right? So he was very loving. He was very caring. He would paint my sister or his family members and all of those things. And in my memories of him working at Fair Hall, so my father would drive us to school, and my school was in Clifton. So we would stop on the way in the morning, and then on the way back again. And he'd be, and in fact, my memory is of him sitting on the floor, ये and दूसरा, and just making those pieces, and when there would be people around him, and a number of times there would be, so something like that. But he would be more like, this is when he sort of crouched, but in that thing he would be sitting alti palti on the floor and sort of working away. And I would be very possessive about him being surrounded by other people, especially ladies. And he was living, when you walked up the
stairs to what is now called Sadika and Gallery. So there's a room which is now the office of the person Ji, who's sort of ji. in charge of the Frere Hall. That was his bedroom, and there used to be a single bed, a window, and I used to spend some time. And he had all these books on astronomy, because if you see the mural, Arzo there's a- Samawat. Arzo Samawat, exactly, Ji. right. So there's a lot of Ji. work on the dissection of the world. So I remember being fascinated by those paintings, and so it was much. But of course, I was seeing him only as my grandfather, and it was much later that I realized that okay, he's not only an artist, but he's something of an iconic figure. I remember one day I took a Pride of Performance medal to my school. And when my teacher saw that, she was horrified. She called the principal, "Ke he's got something which if stolen, to hum kya karenge?" So the school actually called my home, and उस ज़माने में the number used to be without Yes. 3. So it was something with a 6 letter. So then फिर उन्होंने कहा हम आपको नहीं देंगे ये medal. Someone from your home needs to Come and, give- collect. yes. So I mean I can go on, but what I want to talk about is your genre also, जी. because and kudos to you for doing this. And आपने 10 लिखी हैं, but I think आपको अपने ऊपर भी एक कर लेनी चाहिए, right? So अच्छा, बिफोर वी गो ऑन, आप एक पेंटिंग लाए हैं. जी जी मैं बिल्कुल जी, उसके बारे में बात जी. करूँगा. Yeah. So I grew up with comics, as you call them now, graphic novels, and they are graphic novels, of course they are. And then you progress and eventually go through the whole, Tintin Asterix, and then you get into Batman and all that. And I still read them. Up to khair, it's become this billion-dollar, trillion-dollar movie industry. But in the West, or in the global North, they have been a recognized form of literature for decades. So not everybody wants to read a thick book. And Western educationals realized that. So they started producing the classics, whether it's Moby Dick or Charles Right. Dickens novels, whatnot, in graphical form. One of the most impressive pieces of non-fiction I've read is Persepolis, which is a graphic novel which talks about the Iranian Revolution and its effect on a young girl, Yes. who then grows up, and then she's sort of seeing how a very liberal society has become a theological state, and it's repressive and all those things. Now, for me, that was an eye-opener, and since then I've recognized this, that one needs to do it. I recently read a biography of Barack Obama in a graphical form, and unfortunately, Pakistan available nahi, but it's on Amazon. I do have a work, and if one of the volunteers can just, Uzma, is it possible for you just pick it up? So I just want to narrate a very quick story. आपकी इसमें I'm sure you've covered it, but one of the turning points, inflections of Dada Sadikan's life. वॉलंटियर्स आप लोग आए, उज़मा बुला रही हैं आपको. वो अपनी महफिल सजाए हुए हैं बाहर पीछे We बैठ. just need one. We don't need. जल्दी आइए बेटा. जी. Uzma, can you just show me which work is this? मुझे दिखेगा? This is fine. This is fine. Yeah. Okay. ये आपने ये रही. ये मैंने इत्तेफाक से मैंने भी ये इत्तेफाक सिलेक्ट से. की है जी. हसीन इत्तेफाक. बिल्कुल. So one of the inflection points of Dada Sadikan's life was winning the Paris Biennale, right? In which, Right. and so here's an artist from a Qasba in Uttar Pradesh, comes to Karachi, does some work, is very quickly recognized. By age 26, he's being hosted by Hussain Shahid Sarwardi Saab, Yeah. the Prime Minister of Pakistan, Yes. and all those things. But what was fantastic was him winning this Paris Biennale, and this is थोड़ा इधर भी 1960. आके दिखा. So it is a time. the first Asian to Well, the first Asian, Yes, of he course, the was. first Asian. In fact, the first non-European, Yeah. right? So it was the Paris Biennale would be won by mostly Yeah. French artists, and suddenly that catapulted him. And this particular piece that you're looking at is a lithograph from his illustration of Albert Camus' The Stranger, which was sponsored by the Automobile Club, Yes. which is one of the world's most exclusive clubs. I mean, it's people like heads of states and celebrities are part of this club. And
they commissioned it. It was a massive commission, and he was given his own studio, his own sort of a Yeah. art studio in Paris, and a printing press that was doing this. And one of those visitors, and it was so famous that one of the visitors to his studio was one Zulfikar Bhutto, who was then a fresh-faced minister in the newly coming in government of Cabinet, of Ayub General Khan. Ayub Khan. Yeah. And so I've covered this in a long form essay, but he's writing to his brother Yes. Kazman Ahmad, my grandfather. Yes, the letters that he wrote. Your the father letters, had yeah, told the me. letters You know, that he wrote. I had a meeting सादक़ैन के बारे में लिखने के लिए मैंने सिप्तैन के वालिद साहब से मीटिंग की थी बहुत Yeah. लंबी. मैं सादक़ैन को मतलब मैं शायद 16-17 साल की थी और आर्ट स्कूल में क्योंकि मैंने पढ़ा 4 साल, तो सादक़ैन आते जाते रहते थे. और ये जो बात है ना जो सिप्तैन ने कही कि फ्रेयर हॉल का जब कर रहे थे, क्योंकि वो तो उनका आखिरी काम था और इसीलिए वो नामुकम्मल है कि उसके दौरान ही उनका इंतकाल हुआ. लेकिन fact, मुझे it's his- ये याद है It's his death anniversary in 2 days. in 2 February days, 10th yes. and 2 days, 38. तो वो मंजर अकबर हॉल में आर्ट्स काउंसिल में जब उनका शो होने वाला था और हम लोग स्टूडेंट्स थे, पढ़ रहे थे, तो उनको हम रोज़ाना देखा करते थे कि वो चटाई पर सोते थे और वहीं चटाई बिछा के वहीं रहते थे. रात दिन वो काम कर रहे थे और मेरे ख़्याल से ये उनका एक थ्रू आउट ये रहा है कि जिस स्पेस में जहाँ पर भी लाहौर काम, म्यूजियम, लाहौर म्यूज़ियम का you know, बिल्कुल where he बिल्कुल would be, but- और तरबेला डैम जहाँ का भी होते और इतना बड़ा म्यूरल. तो ये हम तो बिल्कुल नालायक नासमझ स्टूडेंट्स थे. पता नहीं था कि हमारे दरमियान एक इतना बड़ा आर्टिस्ट है और वो बिठा के स्टूडेंट्स को वो 2 मिनट में हमारे पोर्ट्रेट्स बनाते थे, पेंसिल से स्केच बना के यूँ बांट देते थे, क्योंकि वो वाकई फ़कीर थे. उनको दौलत जमा करना, उससे फ़ायदा उठाना अपनी तस्वीरों से, उनको बिल्कुल उस चीज़ का वो नहीं था. उनको सिर्फ अपने पेंट चाहिए थे, ब्रशेस चाहिए थे. एक और चीज़ जिसका मैं ज़िक्र नहीं करूँगी, लेकिन ये कि वो इतने प्रोलिफिक थे, इतना काम किया है और इतने बड़े जो म्यूरल्स हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में दोबारा किसी ने हिम्मत की है नहीं, कि वो, कोई हमारे यहाँ म्यूरल आर्टिस्ट उस तरह से नहीं है ना. तो ही वॉज फिनोमिनल एंड मैं सिर्फ मुझे बहुत अफसोस है कि मतलब वो हमें ड्राइंग्स बना के देते थे और पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गई. आप बैठ जाती हैं तो आपकी पोर्ट्रेट बना देते जी हैं. बनाते थे, वही मैं बता रही हूँ. वो स्टूडेंट से कहते थे अच्छा बैठ जाओ बस 2 मिनट, नहीं, लेकिन और we would be millionaires. वी वुड बी. नहीं, लेकिन रुबाना सर ये तो these are the known knowns, right? Many people have जी. witnessed all that. But what I find, and now I study him, and it's hard to study someone that you have been very close to. But now I study him as a person, जी. sort of in a detached, critical way, Right. And I had to work very hard, and at certain age का भी वो उसमें वो है कि distance हो जाते तो आप देख सकते हैं. What was incredible about him is how he was able to balance many things and recognize his situation as an artist and how it fits into the family structure. So, for Ji. instance, unlike many people who are great at their art but end up ruining their families or having a disruptive influence or unable to balance the roles, and I'm not going to take any names, but you know many of them. Yeah. He recognized that his muse or mistress or wife or lover or whatever it is his art. So Totally. he actually broke off a nikah with his first cousin, recognizing that I can't do this. And in my khandan, to this day, breaking a nikah, especially with your first cousin, Yes. is something. It's taboo. I'm sure sabhi ke yahan pe hoga generally. But he did it. And I'm sure there must have been
tremendous resistance or whatnot, but he recognized that this is it. My work is my life. Muse. And I Yes. will not be able to justify anything. In fact, का बड़ा अच्छा इंटरव्यू है कि उन्होंने कहा कि जी शादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ निकाह हो गया, शादी होगी, बच्चे भी होते हैं, बच्चे को जी। स्कूल भी लेके जाना होता है, अस्पताल भी लेके जाना होता है, दूसरी कमिटमेंट्स होती हैं. And then he was also very committed to his nephews and nieces, to his bhabis, to his father, mother, whatnot. To the This is the this is the family side of the man that people often don't know don't about. see or don't Yeah. know about or don't appreciate, because जो आपको जो layer होता है, you're drawn to celebrity, and he was also Yeah. drawn to it. Of course he was. Anybody is, but to be able to balance so many facets. True. Working for General Zia, for instance, is incredible. Yeah. For someone of his background. अभी आपने कहा कि उनको और भी शौक थे. And then he was also working in Islamabad Yes. for Faisal Mosque. I mean, Yes. that whole Bilkul. work. So I am still, I'm mind boggled how he was able to do it, and I'm still trying to, connect the dots. यस सर्टनली लार्जर देन लाइफ जिसको कहा जाता है. मुझे वो इशारा हो गया है कि वक्त ख़त्म है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे 2 सवाल अगर ले लें, अगर किसी के पास है. जी जी कहिए, बस माइक के बगैर ही कह दीजिए. तो मेरा नाम सादिया महमूद है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ाती हूँ. मैं ये बताना चाह रही थी, छोटी सी बात थी कि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, प्राइमरी में थे, क्योंकि पूछा जा रहा था बच्चों से कि आपने वो म्यूरल देखा है या नहीं. क्या हुआ था, खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फज़ा देख. कैलेंडर था या यूबीएल की डायरी थी? It was- UBL की डायरी होगी. it was also a table हाँ, मे बी It also टेबल became कैन. a calendar. It also Yes. became. मस्जिद जी. से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, बिल्कुल वो शेर सिर्फ उस तस्वीर की वजह से समझ में आया. समझ में भी आया, याद भी रहा. जी. जो ये बात हो रही है ना कि ग्राफिक मेकओवर बच्चों के लिए खास तौर पे, बिल्कुल. इमेज रह जाता है. इमेज रह जाता जी. है. और वो इमेज की वजह से वो शेर भी आता है, जिससे मुझे शेर कभी याद नहीं. जी कोई और अगर. जी जी Sure, which is now the Movin शेर pick. मोवन पे कब. It was fantastic that while he was talking to a group of girls, he was writing Yeah, sketch for me, which I still treasure. Oh wow, Rainaz, you are so lucky. I'm really lucky. I treasured it for the name Sadiqan. My face did not matter, but he did it in minutes. Yes. He gifted it to me. बिल्कुल वो ऐसे ही करते थे. हाँ. The rough paper is now mounted, and Yes, of course. I'm really grateful. और हर No, but हर he- मीडियम के ऊपर कर लेते थे. I mean, he did a lot on Yeah. leather, on Yes. skins. No. Calligraphy फिर बाद he में. really enjoyed making portraits of what he called the wheat-colored beauties of this region, and I'm sure you were one of them. That's why he painted you, or Yes. made a portrait. Yes. But he was prolific. He was generous. आखिरी सवाल. And he liked what he did. जी जी. Indeed, Ji, indeed, he was sorry. very caring. That lady at the back. जी. I want to say it's my pleasure and honor to meet you. I'm a student. They are aware of your parents. So I'm very Oh. happy and therefore I think the world over he is a known name. Thank you. जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा जो नाम है वो घर से बाहर भी निकलता हाँ कैसा निकला है. बिल्कुल. उस्मा जी. है. बात और है कि आप लोग ज़ाहिर है इस किस्म के प्रोग्राम करते रहते हैं. ये कोई सेशन इससे हट के किसी वक्त पे महीने भर बाद 2 महीने बाद एक सेशन इस किस्म के मुख्तलिफ लोगों के बारे में होने चाहिए. बिल्कुल. देखिए मैं तो सारी किताबें लेकर आई थी कि थोड़ी थोड़ी बात करूंगी, लेकिन इतना वक्त नहीं है. जी 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 मुस्तफ़ा साहिबा के बारे में आपके बारे में जी. एक पूरी बिल्कुल. रिकॉर्डिंग में लोग बैठें और अपने अपने तासुरात बयान करें. बहुत शुक्रिया नकवी साहब. जो लोग उठेंगे ना उनको जाना चाहिए नीचे अब किताबें खरीदने. ठीक है ना. to my sales team. Otherwise, website पे available है. नहीं वेबसाइट पे तो है, लेकिन अगर यहाँ आज है ना. जी शुक्रिया. तो बहुत जी 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 आप कहना चाह रही हैं कुछ. कि पहले लोग लाते थे बच्चों को सिखाने के लिए डांस वगैरह. जी. अब ये नहीं रहा है रिवाज. जी तो आपका क्या ख्याल है कि आजकल क्योंकि इतनी रिलीजियोसिटी हो गई है, जी. मस्जिद का इतना जी. वो है दौरा बिल्कुल, है, तो बिल्कुल. क्या ये वजह हो सकती है? बिल्कुल. हमारे यहाँ हर चीज़ जो ऐसी है जो एंटरटेन करे जो करे वो हराम समझी जाती है. और हम
उसका इंतजार करते हैं, तो खबर में रहा कि जन्नत में जब जाएंगे तो हमें छुट्टी भी मिलेगी। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। जी यही बात है, यही बात है। अगर इतनी ओवर रिलीजियोसिटी से अगर हम अच्छे इंसान बन गए होते ना, तब तो मैं कहती हूँ कि इससे भी ज़्यादा कर लें, लेकिन उलट हुआ है ना, उसका उलट हुआ है। जो माशरा जिस तरफ जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो सिर्फ ओढ़ लेने से या कुछ और कर लेने से, वो ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल वो है, मैं उस पर नहीं कहती, लेकिन हम कुछ बहुत ही ज़्यादा ही उसको एक तरफ ले गए। बहरहाल आप जी या एज बहुत शुक्रिया। दूसरा सेशन होना है, हम एक तस्वीर ले लें सब चारों, ठीक। दिन